Hello everyone. So our topic for today is chapter number 9, last phase of struggle for independence. So in the previous chapter we have seen that how Gandhi ji took the SALT Act and he did satyagraha in different states, right? So today we will see the last phase of struggle, that इसके बाद हमें struggle नहीं करना पड़ा for independence. In this chapter we are going to study the Quit India movement, underground movement and the contribution of Indian National Army. Act of 1935. This act made a provision for the British governed India provinces and princely states to form a federation. According to this act, the working of British governed provinces will be handed over to Indian representatives. कि जो सारे हमारे places थे जहाँ पे Britishers rule करते थे and all those princely state on which Britishers had their rule on it was now said that according to this act, ये जो act था 1935 का, इसके according what was now the rule that the Britishers have to hand over these places to Indian representative, के वो state को जो Indian represent कर रहा है उनको आपको वो दे देना है. If the princely states joined the federation, then they would lose their autonomy. Hence, they refused to join. Therefore, the proposal of a federal state in the act was not brought into practice. So what happened was कि जो princely state था उनको भी बोल दिया था that if you join this federation, ये जो federation है उसको अगर आप join करोगे तो आपका जो autonomy होता है ना, मतलब एक जो खुद पे रूल है ना, जो एडेड पॉलिसी है वो आपका निकल जाएगा, and that is why they refused to join. So therefore the proposal of federal state in the act was not brought into practice. So therefore ये जो act था ना, फेडरल एक्ट वाला, फेडरल स्टेट इन द एक्ट वाला, ये जो एक्ट था बेसिकली फेडरल स्टेट वाला, वो प्रैक्टिस में लाया नहीं गया था. Provincial cabinets. The Indian National Congress was not satisfied with the Act of 1935 but still decided to take part in the election of provincial legislature provided by the Act. The Indian National Congress, they were not satisfied. उनको ये policy, उनको ये act, it wasn't convincing to them, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, but still they decided to take part in the elections. In 1937, elections were held in 11 provinces in the country. Among these, Indian National Congress gained majority over 8 provinces and came to power. Still, उन्होंने decide किया कि वो लोग तो part लेंगे elections में. And there were election done in overall 11 provinces. 11 अलग-अलग different places पे, 11 different states पे ये voting election हुआ था, and उसमें से 8 में majority में आके Indian National Congress was on the lead and they had the power. Among these, Indian National Congress gained over 8 provinces and came to power. In other 3 provinces, none of the party could achieve majority and therefore mixed cabinet was formed. ये जो बाकी के 3 places थे उसमें there was not majority and therefore there was the rule of mixed cabinet. The cabinet ministers of Indian National Congress did useful work for the people, such as release of political prisoners from jail, introduction of basic education, prohibition of liquor, measures undertaken to improve conditions of Dalits, passing of act giving debt relief to the farmers, etc. तो अभी जो Indian National Congress के cabinet ministers थे, since they were into the power, they had to make certain laws or come out with certain policies which are helpful for people, right? Because people have voted them, तो कुछ विश्वास दिखा के या कोई faith बता के ही लोगों ने उनको vote किया था, right? So that is why they came up with different policies, okay? They did a useful work कि उन्होंने बहुत सारे जगह पे बहुत अच्छा काम किया था. जैसे they released political prisoners जो जेल में थे उनको उन्होंने निकाला, basic education लोगों को provide किया, then जो liquor मतलब जो basically दारू होता है उसको prohibit किया, उसको ban किया,
फिर जो दलित्स हैं उनके लिए प्रॉपर मेजर्स लिए जा रहे हैं या नहीं, इधर दे आर गिविंग इधर दे आर गेटिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो देखा जा रहा था. पासिंग ऑफ एक्ट गिविंग डेप्थ रिलीफ टू द फार्मर्स, कि जो फार्मर्स होते हैं उनको अगर उन्होंने लोन लिया रहता है या किसी के पास से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको रिलीफ दिया जा रहा था. तो ऑल ऑफ दीज वर्क्स वर डन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. Scripps mission. Now, what is Scripps mission? Let us see. During the Second World War, England supported America against Japan. The Japanese army reached the eastern borders of India. The British realized that if Japan attack India, then they will need cooperation from the Indians. Hence, British Prime Minister Winston Churchill sent Sir Stafford Cripps to India. In March 1942, he put up a proposal of India in front of Indians, but none of the political party was satisfied with the proposal. The Indian National Congress rejected the proposal since there were no clear mention of complete independence. Since there were no mention of creation of Pakistan, the Muslim League also rejected the Cripps mission. So basically Cripps mission क्यों बनाया गया था? Because जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें इंग्लैंड ने अमेरिका को सपोर्ट किया था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज बिटवीन अमेरिका एंड जापान, राइट. तो उसमें क्या किया, इंग्लैंड ने अमेरिका को सपोर्ट किया था, तो जापान को आया था गुस्सा. सो दे डिसाइडेड कि हम लोग इंडिया पे जाके ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जाके अटैक करेंगे. नाउ ब्रिटिशर्स न्यू कि अगर ये लोग ने इंडिया पे अटैक किया तो मुझे इंडियंस का सपोर्ट चाहिए रहेगा, राइट. वी वुड नीड हेल्प ऑफ इंडियंस. तो उन्होंने अपना जो मेन हेड होता है ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, उसने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया में भेजा था. एंड ही केम अप विद अ पॉलिसी, एंड उसने एक प्रपोजल रखा था इंडिया के सामने कि अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं आपको मतलब आई वुड हेल्प इंडियंस. बट उसमें प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया था कि कैसे आप हेल्प करोगे, कि आप यू गाइज वुड लीव दिस कंट्री एंड country would be independent. Yeah, there was not proper mention. It was just that we would help you, but in how and when will you help, that was not mentioned. And that is why Indian National Congress उनको ये convincing नहीं लगा proposal, and they rejected this मिशन. ओके, जो क्रिप्स का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया. फिर जो मुस्लिम लीग थे उनको भी कुछ अच्छे से समझा नहीं कि क्रिएशन लाइक पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, हमको सपोर्ट मिलेगा या नहीं. सो इवन द मुस्लिम लीग दे ऑल्सो रिजेक्टेड दिस क्रिप्स मिशन. ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट वाज क्रिप्स मिशन. इट वाज बेसिकली अ प्रपोजल which was put forth by Stafford Cripps to Indians, and he said that he would protect India, but how, and proper mentions were not given into that proposal. So that is why everyone rejected it. Second World War and Indian National Congress. The Second World War began in Europe in 1939. The then Viceroy Lord Lithgow declared that India had joined the war on the side of British. England claimed that it is the fighting to save democracy in Europe. The Indian National Congress demanded that if the claim was true, then England should immediately grant freedom to India. England refused to fulfill this demand, and therefore the Provincial Minister of Indian National Congress resigned in November 1939. तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा टॉपिक क्यों दिया है? बिकॉज जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन हुआ यूरोप में, सो जो वाइसरी था ना लॉर्ड लिथगो, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिया आर हेल्पिंग इंडिया आर फ्रॉम द साइड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड इंडिया ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं, इंडियन ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं. तो जैसे ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को पता चली, तो दे सेड इफ दिस क्लेम इज ट्रू, अगर ये बात सच है तो यू शुड ग्रांट अस इंडिपेंडेंस, राइट. बट सिंस दे रिफ्यूज टू डू दैट, ब्रिटिशर्स उन्होंने सीधा ना बोल दिया कि ये डिमांड आपका फुलफिल नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई जो प्रोविजनल मिनिस्टर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने नवंबर के मंथ में रिजाइन कर दिया. ओके, नाउ वी विल सी क्विट इंडिया मूवमेंट. आफ्टर द क्रिप्स मिशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इंटेंस मूवमेंट फॉर अटेनिंग इंडिपेंडेंस. के अभी उनको पता चल गया था कि क्रिप्स में भी ये लोग खुद का ही फ़ायदा देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स कुछ मेंशन नहीं कर रहे, इनको सिर्फ हमारी हेल्प चाहिए, इसलिए बोल दिया कि वी वुड प्रोटेक्ट यू, बट हाउ एंड व्हेन कुछ भी मेंशन किया नहीं था. सो नाउ वी नीड टू वर्क फॉर आवर इंडिपेंडेंस. द वर्किंग कमिटी ऑफ द कांग्रेस passed a resolution on 14 July 1942 at
Varda. The resolution demanded that the British rule in India be ended immediately and India should be given independence. If this demand was not fulfilled, then the Indian National Congress warned to start a non-violent movement for freedom of India. तो अभी Indian National Congress was also fed up कि बाबा कब तक इनका रूल चलेगा. तो they passed a resolution. Okay, वर्धा में एक प्लेस है, वहाँ पे उन्होंने 14 जुलाई को resolution पास किया. उसमें clear cut demand था that the Britishers has to give independence to our country and they have to move back to their country. And it was clearly mentioned कि अगर ये demand fulfill नहीं हुई तो we would start a non-violent movement. Okay, कि हम लोग फिर देखेंगे नहीं and फिर we will start a movement. Okay, वैसा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन. नाउ मूवमेंट का डिसाइड कर लिया था. नाउ वी विल सी रेजोल्यूशन क्या था. ऑन 7th August 1942 द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट गोवालिया टैंक क्रांति मैदान इन मुंबई. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन. तो उन लोग ने एक सेशन ज्वाइन किया था एवरीवन रिगार्डिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट. एंड वहाँ पे हेड कौन थे उस टाइम पे? Maulana Abdul Kalam Azad. You can see the picture is given on to page number 41. So he was the president of this session. The British should leave India. This resolution was passed by Congress Working Committee at Warda, was to be finally approved in Mumbai session. तो ये जो डिमांड किया था ये लोग ने, ऊपर हम लोग ने देखा क्विक इंडिया मूवमेंट में हम लोग ने देखा ना कि एक रिजोल्यूशन पास किया था कि आपको निकलना पड़ेगा ना, इफ़ यू डोंट देन हम लोग नॉन वायलेंट मूवमेंट पास करेंगे. तो ये जो ये था रेजोल्यूशन था उसको अप्रूवल मुंबई के सेशन में मिला. ऑन 8 August द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पुट फोर्थ बाय जवाहरलाल नेहरू गॉट पास्ड विद ग्रेट मेजॉरिटी. तो फाइनली उनको परमिशन मिला एंड अंडर द सपोर्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू उनको मेजॉरिटी भी मिला. इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नेशन वाइड नॉन वायलेंट एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. ही सेड एवरी वन ऑफ यू should from this movement onwards consider yourself a free man or woman and behave like a citizen of free India. We shall either free India or die in this attempt. Gandhiji made an inspirational appeal to the public to be ready to sacrifice with the feeling of do or die. तो हम लोग ने क्या बोला था कि वी वुड डू अ पीसफुल मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट करेंगे. तो अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी जी. एंड तभी महात्मा गांधी जी ने लोगों को इंस्पायर करने के लिए कौन सा कोड बोल दिया, दैट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड बिहेव एज इफ यू आर मूविंग और यू आर रोमिंग इन अ फ्री कंट्री विच इज़ इंडिपेंडेंट. एंड आपको डर के नहीं जीना है वैसे, यू नीड टू मूव लाइक अ फ्री सिटीजन एंड और वी वुड die in this attempt, but हम लोग डर के नहीं रहेंगे वैसे. and he did this sacrificing appeal to the people that either do or die. बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट. अभी क्या पीपल्स मूवमेंट मतलब लोग आ गए साथ में एंड देन वी हैड अ मूवमेंट. कौन सा था हम लोग देखते हैं. द न्यूज़ ऑफ अरेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्रेड आउट ऑल ओवर द कंट्री. द एंग्री मॉब टुक आउट द प्रोसेशन एट वेरियस प्लेसेस. इवन दो पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक बट स्टिल पीपल वर नॉट अफ्रेड. सो व्हाट ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डू, उनको पता है कि लोग साथ में आ रहे, तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनसे वो लोग इंस्पायर होके साथ में आ रहे वो लोग उनको ही जेल में डाल देते थे. सो दैट लीडर अगर जेल में चला गया तो जो फॉलोवर्स होते दे बिकम वीक एंड दे कुड नॉट डू द मूवमेंट. बट ओवर हियर इट वॉज नॉट द सेम. नाउ पीपल वर इन एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड पीपल वर टुगेदर नो मैटर वॉट द सिचुएशन वॉज. पुलिस लाठी चार्ज करता था, मारता था, ओपन फायर करता था. The people were now not worried. They were all together and they were not afraid of this. The agitators attacked some places, jails, police station, railway station, etc., which symbolizes the suppressive policy of British. They tried to take control of the government offices. In Maharashtra, the young and old struggled with determination and boundless courage at places like Chimur, Ashti, Yawali, Mahad, Gargoti, etc., and made the struggle immortal. So now people, the agitators, जो agitators थे उन्होंने attack किया at some main places, but now the people they were trying to even control government officers, कि जो government officers है उन पे भी वो लोग control करना चाह रहे थे. and then एक अच्छे से determination से and boundless
करेज मतलब क्या बेसिकली कि बहुत सारे इन महाराष्ट्र में हमारे जो छोटे छोटे प्लेस है वहाँ पे दे मेड दिस मूवमेंट. स्ट्रगल इमॉर्टल मतलब क्या कि ये मूवमेंट को अच्छे से होने दिया. कहाँ पे होने दिया? चिम्मुरष्टी, यवाली, महादगढ़, दीज आर बेसिकली प्लेसेस ऑफ महाराष्ट्र. अंडरग्राउंड मूवमेंट. At the end of 1942, the public movement got a new turn. The leadership of the movement went into hands of young socialist activists. Jayaprakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia, Chotubhai Puranik, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, SM जोशी, शिरुभाऊ लिमाये, NG गोरे, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, मंगललाल बगदी, उषा मेहता, सच लीडर्स वर इन द फोर फ्रंट. कि तो भी जो मेन लीडर्स थे, अगर इन लोग ने उनको अरेस्ट कर दिया था, बट पीपल वर नाउ इनटू फुल पावर. एंड अभी लीडरशिप ये सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को दे गई थी. ये सारे जो लोगों का नाम हम लोग ने अभी देखा, उनके हाथ में लीडरशिप दी गई थी फॉर पीपल मूवमेंट. द एक्टिविस्ट disrupted the transport and communication as well as the government machinery by causing the breakdown of railway routes, cutting of telephone lines, blowing up bridges, etc. The impact of this movement was seen all over India. Hemu Kalani in Sindh province tried to destroy the railway along with his companions when he received the news of passing of a railway carrying British troops and supplies. The court punished him to be hanged to death. तो अभी क्या हो गया था? People were now in anger. जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने क्या किया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो सारे फैसिलिटीज़ है उनको ब्रेक डाउन कर दिए. जो गवर्नमेंट के मशीन्स थे, रेलवे रूट्स थे, सबको, टेलीफोन लाइन सबको कट कर दिया था. एंड क्या हो गया? हेमू कलीन सिंध प्रोविंस के थे वो, उन्होंने क्या किया? जब उनको पता चला कि एक बेसिक रेलवे का जो ये होता है, डब्बा होता है, उसमें ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स एंड सप्लाईज थे, उनके सारे मशीन्स थे, तो उन्होंने उसको ये कर दिया. The court, what did he try to do? He tried to destroy that particular railway का डब्बा. And then the government, when they got to know, they hanged him to death. भाई कोतवाल, आज़ाद दस्ता इन करजत, आप इनके फ़ोटोज़ देख सकते हो. भाई कोतवाल, आज़ाद दस्ता इन करजत तालुका ऑफ मॉडर्न डे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जनरल अवारीज, लाल सेना इन नागपुर. सच ग्रुप्स मेड द गवर्नमेंट हेल्पलेस एंड विटनेस फॉर मंथ्स. सो देवर नाउ ग्रुप ऑफ पीपल. भाई कोतवाल करके था, आज़ाद दस्ता करके था करजत में. सो भाई कोतवाल आज़ाद दस्ता करके ग्रुप था, जो भाई कोतवाल करके जो थे उनका ग्रुप था. एंड देन देयर वाज लाल सेना करके ग्रुप नागपुर में. तो ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स उनका पावर इतना था ना कि गवर्नमेंट नाउ वाज फीलिंग हेल्पलेस, कि उनको पता नहीं चल रहा था कि हमें क्या करना चाहिए. In Mumbai, Vitthal Zaveri, Usha Mehta and her companion established a secret transmission center named Azad Radio. Patriotic songs were sung on it. News of agitation in the country were broadcasted on it. Patriotic speech were telecasted. This gave encouragement to the agitators. Such transmission centers opened at Kolkata, Delhi, Pune and for some period of time. अभी क्या हो गया था? ट्रांसपोर्ट एंड लोकल फैसिलिटीज़ बंद हो गया था. लीडर्स को ये लोग ने जेल में डाल दिया था. तो पीपल दे डू गेट डीमोटिवेटेड, राइट? तो उस टाइम पे उषा मेहता एंड व्हाट ऑल दे डिड अ सीक्रेट ट्रांसमिशन सेंटर आज़ाद रेडियो करके. तो उसके ऊपर से वो शो में जाके लोगों को वो इंस्पायर, मतलब वो शो पे लोगों को वो इंस्पायर करते थे. पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लगाते थे. दे यूज्ड टू गिव स्पीचेस एंड इंस्पायरिंग स्पीचेस, पैट्रियोटिक स्पीचेस देते थे. न्यूज़ ऑफ एजिटेशंस देते थे, या कोई न्यूज़ होगा गवर्नमेंट से रिलेटेड या उनके कुछ भी, मतलब एक लोगों को इंस्पायर करने का वो लोग काम कर रहे थे, सो दैट द पीपल दे डोंट गेट डीमोटिवेटेड. Such transmission centers were मुंबई में तो बनाया गया था, but at various places in Kolkata, Delhi and Pune also it was established. Establishment of parallel government. At some places in the country, British officers were driven out and the people government was established. कि बहुत सारे places पे भी ऐसे हो गया था कि लोगों का power ज़्यादा था, and now people's movement was establishing at various places. These are called as parallel government because British government तो था ही, but उनका इतना power
बराबर नहीं था जितना अपना पीपल मूवमेंट का था. That is why it is called as parallel government, where parallel government were formed in districts of Midnapur in Bengal, Balia and Azamgarh in UP and Purnia in Bihar. So ये सारे places में parallel government start हुआ था. In Satara district of Maharashtra in 1942, Kranti Singh Nana Patil brought an end to the British government and established parallel government. Okay, तो सातारा district में भी उन्होंने parallel government establish किया था. किसने? क्रांति सिंह नाना पाटिल. At Kundal, under the leadership of Krantiya Grani GD allies Vapulad, Tufan Sena was established. Though its medium, collection of taxes, maintenance of law and order, punishment to criminals, such works was done by the parallel government. So ये parallel government क्या क्या काम करती थी कि जो tax collect करना होता वो करती थी, maintenance of law and order was all of these work, punishment to the criminals. So all of these work was under the it was seen by parallel government. वो ये काम देखती थी. People started accepting the verdict passed by people's court appointed by the parallel government. Okay, तो जो parallel government का court था उसको people court का नाम दिया गया था, and उससे जो law या verdict pass हुआ उसको ही लोग fix मानने लगी. तो अभी British government का क्या हो गया कि उनके वर्ड को या उनके पावर को कोई इतना ये नहीं दे रहा था, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था. अपोजिशन टू मनी लेंडर्स, प्रोहिबिशन ऑन लिकर, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, अपोजिशन टू कास्ट डिस्टिंक्शंस, many such constructive work was done by this government. Due to its parallel government became a source of inspiration for the public. So because of this government was formed, so now people realized कि okay इनके verdict को people were supporting. Then the rules they came up with like opposition to money lenders. फिर जो liquor था उसका prohibition चल रहा था, जो literacy था मतलब क्या basic education सबको दिया जा रहा था, caste के जो सारे problems थे वो clear करे जा रहे थे. So when all of these things were into picture, so now people realized that no, our parallel government is also useful and it is a source of inspiration, and अगर ऐसा बना तो आगे हमारा ही it would be beneficial for us only, and that is why now people supported each other into this parallel movement so that a parallel government could be formed. Importance of Quit India movement. The 1942 movement took up the form of a nationwide agitation. To fulfill the objectives of gaining independence, lakhs of Indians made unlimited sacrifice. That people were now tired of British government and they wanted freedom. And each and everyone supported, and lakhs of Indians, they sacrificed their life for this movement. Many sacrificed their life. The number of people participating in struggle was so huge that even all the prisons in the whole of the country were not enough to contain them. Britishers क्या करता था, डराने के लिए जेल में डाल देते थे, बट इतने सारे लोग थे कि जेल भी छोटा पड़ रहा था इतने सारे लोगों को अंदर डालने के लिए. द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स कंपोज बाय सेन गुरुजी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एंड अदर इंक्रीज द एंथुजियाज्म ऑफ एजिटेटर्स. दिस नेशन वाइड मूवमेंट इज कॉल्ड अगस्त क्रांति. ओके, तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए देयर वाज सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो कंपोज किए गए थे. तुकडोजी महाराज एंड सेन गुरुजी, इन्होंने जो सारे कंपोज किए थे वो लोगों को सुनाए जाते थे. अभी बेसिकली हमारे इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे में अगर 2 दिन भी, वही 2 दिन होते जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते, वो 2 दिन भी आप सॉन्ग सुनो, लिरिक्स समझो ना, तो यू विल फील इमोशनल. ओके, यू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट सॉन्ग. तो उस टाइम पे तो पीपल वर नॉट हैविंग फ्रीडम, एंड उस टाइम पे वो सारे सॉन्ग्स प्ले होते थे. लाइक वो सारे टाइम के सॉन्ग्स अलग हो गए, बट द लिरिक्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, यू वुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, लाइक द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन, कितना इम्पॉर्टेंट है एक एक वर्ड उस टाइम पे लोगों के लिए. So people used to get inspired, and all of these nationwide movement was called as August Kranti. Indian National Army, that is Azad Hind Sena. Netaji Subhash Chandra Bose took phenomenal efforts for gaining independence of India. On the eastern borders of India, thousands of Indians stood in readiness to fight against the British. That every Indian soldier was now ready to fight against the Britishers on the borders. All these soldiers belonged to Azad Hind Sena.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज द लीडर, कि उनका लीडरशिप कौन कर रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ही ग्रेस्ड द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ट्वाइस, कि उनको 2 बारी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था. As per his opinion, while England was engaged in Second World War, the Indians should take advantage of it and make the movement more intensive. If necessary, India should seek the help of enemies of England, but there aroused differences of opinions between him and other senior leaders of Congress. As a result, Subhash Chandra Bose resigned from the position of president. To place his views in front of the people, he found a party known as Forward Bloc. Okay, तो उनका मानना क्या था? Since he was, he became twice the president of Indian National Congress. तो उनका ये एक पॉलिसी था, उनका ये एक थिंकिंग था कि सिंस ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व है ब्रिटिशर्स, उसी टाइम पे हम लोग को वो सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहिए एंड वी शुड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड इवन इफ वी वांट वी कैन टेक द हेल्प ऑफ enemies of Britishers because even they would be ready to help us. But ये point of view या ये opinion उनका बहुत सारे जो दूसरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उनको कन्विंसिंग नहीं लग रहा था एंड देयर वाज चेंज ऑफ ओपिनियन. अगर मुझे ये कन्विंसिंग लग रहा है बट किसी और को नहीं, एंड पार्टी है ना, इट इज़ अ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पूरा ये है ग्रुप है, तो एक कोई बोलेगा वैसे नहीं चलता. इट शुड बी बहुमत, मेजॉरिटी होना चाहिए. एवरीवन इज कन्विंस देन ओनली यू कैन टेक सम एक्शन. बट सिंस मोस्ट ऑफ देम वर नॉट कन्विंस ही रिजाइन फ्रॉम दिस पोजिशन. तो उन्होंने पोजिशन, अपना जो प्रेसिडेंट का पोजीशन था उसमें से उन्होंने रिसाइन किया. बट उनके जो व्यूज़ थे, उनका जो ओपिनियन था, वो प्लेस करने के लिए वो अच्छे से एक जगह पे, मतलब बेसिकली उनके व्यूज़ और ओपिनियंस कहाँ पे वो शेयर कर सके, इसके लिए उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक. सॉरी. Through his speeches, नेताजी appealed to the Indians to revolt against the British rule. कि वो उनके speeches में वही अपील करते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है. Due to it, the government imprisoned him. एज यूजुअल डराने के लिए लोगों को गवर्नमेंट क्या करता था? लीडर था उसको ही अंदर डाल देता था. सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन फास्ट unto death into prison, due to which the British government interned him in his residence. From there he escaped in disguise. तो सुभाष चंद्र बोस भी he wasn't also द वन हु वुड गिव अप दैट ईजीली. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फास्ट रखा. जब तक मैं मरना चाहूँगा तब तक मैं प्रिजन में, मतलब जेल में जब तक हूँ, एंड मरूंगा नहीं तब तक मैं फास्ट रखूँगा. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको घर पे जाने दिया एंड वहाँ से वो एस्केप हो गए. इन अप्रैल 1941 ही रीच जर्मनी. तो वो जर्मनी चले गए. देयर ही फाउंडेड फ्री इंडिया सेंटर. फ्रॉम द बर्लिन रेडियो स्टेशन इन जर्मनी ही अपील्ड टू द इंडियन पीपल टू जॉइन इन एन आर्म स्ट्रगल. ड्यूरिंग दिस पीरियड राश बिहारी बोस इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू जापान. तो जैसे उनको पता चल गया वो वहाँ से जर्मनी चले गए एंड वहाँ के रेडियो स्टेशन से भी उन्होंने पीपल को, लोगों को अपील करना बंद नहीं किया एंड लोगों को लीड करना बंद नहीं किया. एंड देन ही ऑल्सो अपील पीपल दैट प्लीज सपोर्ट इंडिया एंड डू नॉट गिव अप इन टू दिस स्ट्रगल ऑफ अस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. एंड जब वो वहाँ पे थे तो उनको राज बिहारी बोस से भी एक इनविटेशन आया कि आप आके हमारे जापान में आ जाओ. वैसा नाउ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. राज बिहारी बोस was staying in Japan since 1915. हम लोग ने ऊपर देखा कि राज बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को जापान आने के लिए इनविटेशन दिया. तो वो वहाँ पे 1915 से रह रहे थे. He had organized the Indian patriotics living in countries of Southeast Asia and established an organization named इंडियन इंडिपेंडेंस लीग. तो वहाँ पे जो इंडियंस थे उनको उन्होंने इंस्पायर किया, उनको सबको साथ में लाया एंड एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. In the early part of 1942, Japan conquered the territories in Southeast Asia which were controlled by the Britishers. Thousands of Indian soldiers and officers in British army there fell into the hands of Japan. Raj Behari Bose, with the help of Captain Mohammed Singh,
formed a battalion of this Indian prisoners of war. It was named as Indian National Army, Azad Hind Sena. Later, नेताजी सुभाष चंद्र बोस led the Indian National Army. तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी हमारी ऐसी टेरिटरीज थी जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल किया था. सो यू नो देयर वर मेनी इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ब्रिटिश आर्मी में वहाँ पे, बिकॉज ये हम क्या करते थे ब्रिटिशर्स, हमारे ही लोगों को लेके खुद के आर्मी में डालते थे. तो उस टाइम पे वो सारे लोग जापान में थे ना, तो इन्होंने राज बिहारी बोस ने उन सारे लोगों को लेके कैप्टन मोहम्मद सिंह के लीडर के अंडर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी. एंड फिर उसका लीडरशिप कौन देख रहे थे? सुभाष चंद्र बोस. इन अक्टूबर 1943 नेताजी established Azad Hind government in Singapore. Shah Nawaz Khan, Jagannath Bhosle, Dr. Lakshmi Swaminathan, Guru Buksa Singh Dilhon, Prem Kumar Sehgal, etc. were his chief associates. Captain Lakshmi Swaminathan was the commander of Rani of Jhansi regiment. Netaji appealed to the Indian people, you give me blood and I will give you इंडिपेंडेंस. समझा? तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर में भी एक आज़ाद हिंद गवर्नमेंट करके इस्टेब्लिश किया. फिर बहुत सारे लोग थे जैसे जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, सब लोग ने उनको हेल्प किया. एंड फिर उन्होंने अपील लोगों से किया, तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा. यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस. पता है ना आप लोगों को ये अपील किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस. अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. अभी इंडियन नेशनल आर्मी बन तो गया था, उसका अचीवमेंट क्या था, क्या क्या उन्होंने अचीव किया वो हम लोग देखते हैं. In November 1943, Japan conquered Andaman and Nicobar Islands and handed them over to Azad Hind government. Netaji renamed them as Shaheed and Swarajya respectively. Okay, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था जापान ने, एंड दैट वाज हैंडेड टू दिस गवर्नमेंट, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट. तो नेताजी ने उसको रिप्लेस कर दिया था. नाम क्या रिप्लेस किया था? शहीद एंड स्वराज्य. In 1944, Indian National Army captured the Arakan province in Myanmar. Posts on the eastern borders of Assam were also captured. So, क्या क्या अचीव किया इंडियन नेशनल आर्मी ने? पहले तो अंडमान एंड निकोबार पे से अपना ये अचीव किया, फिर आरक्कन प्रोविंस था जो म्यांमार का, वो अचीव किया. पोस्ट ऑफ ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ आसाम उनका भी कैप्चर कर लिया. तो दीज वर ऑल द अचीवमेंट्स विच वर डन बाय इंडियन नेशनल आर्मी. In the same period, the campaign of Imphal remained incomplete because Japan stopped helping the Indian National Army. But in adverse circumstances, soldiers of Indian National Army were dedicatedly fighting. तो अभी क्या हो गया था? जापान ने हम लोग को हेल्प करना बंद कर दिया था, बट उससे हम लोग हारे नहीं थे. इंडियन नेशनल आर्मी was since fighting dedicatedly towards everyone. But it was soldiers of Indian National, yeah. But in the same period, Japan accepted defeat. On 18th August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane accident. On this background, the soldiers of Indian National Army had to lay down their arms. Thus ended the thrilling phase of Indian National Army. Indian National Army का लीड कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस. एंड वही एक प्लेन अटैक करे, वही एक प्लेन एक्सीडेंट में एक्सपायर्ड हो गए. एंड दैट इज़ वाई द इंडियन नेशनल आर्मी दे हैव टू वो पूरा ये हो गया, थोड़ा डाउन फेज में चला गया. एंड देन थ्रिलिंग वो जो एक वो ऐसा बोल सकते हैं कि ख़त्म ही हो गया. क्यों ख़त्म हो गया? बिकॉज जो मेन लीडर थे वही ख़त्म हो गए. मतलब he only expired, and that is why there was no one that powerful like him to lead. Okay. Later, the British government charged the officers of Indian National Army with treason. Pandit Jawaharlal Nehru, Bhulabhai Desai, Tej Bahadur Sapre, these expert lawyers defended them, but the military tribunal held the officers guilty and they were sentenced to life imprisonment. Therefore, there was a severe unrest against the British government in the minds of Indian people. Finally, the British government had to suspend the punishment given by military tribunal. तो अभी ये क्या हो गया? ब्रिटिश अभी कोई लीडर नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस उनको किसको हमारे आज़ाद हिंद जो बना था उसको वापस परेशान करना स्टार्ट कर दिया था. जो इंडियन नेशनल आर्मी था उसको वापस से परेशान करना स्टार्ट कर दिया. बट देयर वर मेनी लॉयर्स हु केम आउट एंड सपोर्टेड देम. बट
ब्रिटिशर्स का गवर्नमेंट था तो वी कुडंट डू दैट मच। एंड फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको इम्प्रिजन मतलब क्या जेल में डालने का रूल दे दिया। एंड देन अभी पीपल जो लोग थे ना उनके अंदर ब्रिटिशर्स के लिए अभी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा था। क्यों गुस्सा था? बिकॉज एक तो सोल्जर्स लोग को जेल में डाल दिया बिना कुछ उनका फॉल्ट हुआ नहीं, मतलब उनका कोई फॉल्ट नहीं था तो भी उनको जेल में डाल दिया। एंड नाउ पीपल वर रियली एंग्री ऑन देम। फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ टू सस्पेंड द पनिशमेंट गिवन बाय द मिलिट्री ट्रिब्यूनल, के उन्होंने फिर सस्पेंड कर दिया, ये जो पनिशमेंट था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। Revolt of Indian Navy and Air Force. The Navy and Air Force soldiers, with the inspiration from Indian National Army, caused discontent against the British government. It burst out on the British warship Talwar in Mumbai on 18th February 1946. तो इंडियन नेशनल आर्मी को इंस्पायर मतलब उनसे इंस्पायर होते हुए हमारा नेवी एंड एयरफोर्स का जो सोल्जर्स था उनको बहुत गुस्सा था। किसके ऊपर था गुस्सा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बिकॉज उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को जेल में डाल दिया था। एंड ना वो सारा गुस्सा कहाँ पे बाहर निकला? जो तलवार करके ब्रिटिश वॉरशिप था, एक ब्रिटिश के साथ जो अपना फाइट था उसमें उनका पूरा गुस्सा बाहर निकला। द सोल्जर्स अनफर्ल्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द ब्रिटिश वॉरशिप. They raised slogans against the British government. The British government sent army to open fire on the naval soldiers. The rebels also made counter-attacks with firing. The workers and common people extended their support to the naval soldiers. Finally, with the mediation of Sardar Vallabhbhai Patel, the naval soldiers laid down their army. तो उनको भी गुस्सा आया था, जो हमारे लाइक नेवी एंड एयरफोर्स वाले सोल्जर्स थे उनको भी गुस्सा आया था। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की जो शिप थी उसके ऊपर हमारे ट्राई कलर लगाया एंड देन दे वर गिविंग स्लोगन्स विच वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो द ब्रिटिशर्स वर मोर देन एंग्री एंड दे स्टार्टेड लाइक दे मेड ओपन फायरिंग, के उन्होंने ऑर्डर दे दिया ओपन फायरिंग का. सो इवन वी एज अ रिबेलियन वी वर ऑल्सो ओपन फायरिंग, बट देन अंडर द मीडिएशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर वो आए एंड फिर उन्होंने नेवल सोल्जर्स को बोला कि नहीं बाबा, अपने आर्म्स जो है अपन नीचे कर देते हैं एंड देन वी शुड come to a point where we are not fighting against them. To support the uprising of naval soldiers, the Air Force officer from Delhi, Lahore, Karachi, Ambala, Meerut etc. went on strike. तो अभी सपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स ऑफिसर्स भी आए, जो नेवी वाले सोल्जर्स थे हमारे, उनको सपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स ऑफिसर्स आए. कहाँ से आए? दिल्ली, लाहौर, एंड वो लोग सब स्ट्राइक पे चले गए. दिस रिवॉल्ट वर अ क्लियर इंडिकेशन दैट द सेंटिमेंट्स ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द रूलर हैड रीच अ क्लाइमैक्स. कि ये जो स्ट्राइक था, दिस वॉज अ क्लियर अपीयरेंस, के लोगों को अभी समझ रहा था कि लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के लिए कितना डिसकंटेंट था, दैट एवरी वन वॉज एंग्री अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. इन दिस वे द पीरियड बिटवीन 1942 to 1946 shook the foundation of British power in India. ब्रिटिशर्स भी डर गया था ना, बिकॉज दे न्यू कि अभी ये लोग एक साथ आ गए, इनके अंदर यूनिटी है एंड इनको कितना भी करो ये लोग डिमोटिवेट हो ही नहीं रहे. तो इवन दे वर इनटू अ कंप्लीट शॉक. Through the Quit India movement, the severe discontent of Indian national people against the British was expressed. ये जो हम लोग ने अब तक पढ़ा पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट, जो सारे मूवमेंट थे उसमें हम लोग वही देख रहे थे कैसे हमारे इंडियंस लोगों ने we showed a discontent amongst the Britishers. Why? Because each and every one was angry. Because इनका एक तो रूल ब्रिटिशर्स का क्या था, that they just used to discourage everyone, harm everyone, and plus जो हमारे लीडर्स थे कुछ भी हो जाए उनको जेल में डाल देते थे, तो लोगों को गुस्सा था. आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स वर द बैकबोन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे वर ऑल्सो नाउ अपोजिंग द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ये लोग पहले क्या करते थे, इन लोग ने आर्मी, नेवी, एयर फोर्स तो सब बना दिया था, बट उसके अंदर जो सारे लोग थे वो तो अपने ही थे ना. ऑल ऑफ देम वर इंडियंस ओनली, सम ऑफ देम वर ब्रिटिशर्स. तो ये उनका बैकबोन था, बट अभी जो बैकबोन था वो भी इंडियंस को ही सपोर्ट कर रहा था. तो नाउ दे वर इन कंप्लीट in a devastating state कि they didn't knew what to do. Due to this incident, the British rulers realized that they will not be able to empower India for a longer period of time. But they now realize that now these people, they have come together and they would support Indians, and now it is like a tough situation for us to keep our rule onto this country. Understood? That is how we come towards the end of our chapter. I hope you have understood कौन से movement हुए थे, कौन से people movement थे, कैसे movement हुए, and how people supported it. So yeah, that is how we come towards the end of our session. The questions onto the part of exercise on page number 44 would be a homework.
See you all in the next session. Till then, bye bye and take care. Bye.